Hello and good afternoon. Thank you for taking out time to join me, for those of you who have joined me. And this is yet another edition of What's Echoing. And right now, COVID is all around us. Just Suraj jokes, hi, Bhavna Fit, hi Bhavna, Ajit Malik. Good morning, guys. Good afternoon, actually. And I'm really grateful for you all to have taken out time to join me on this extremely special conversation. I'm talking to, hi Arvind, hi Suhan, hi Arpit, hi Nikant, Ajay Kumar. Guys, I'm really grateful that you all have taken out time, so many of you, to join me today, because today I'm having a very, very special conversation. I'm going to be talking to Manoj Ravi. Manoj Ravi is a vegetable vendor, and he is somebody I have known for over 15 years, and he has adapted as an entrepreneur, as an individual, to make sure that we all get fresh supplies in this time. In fact, I feel this particular live of mine, and in fact the ones I'm going to be doing over the next 2-3 days, are actually very, very important. मैं आज बात करने वाली हूँ मनोज रवि से, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है. पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ये बातचीत सुनने के लिए. और मैं बात करने वाली हूँ मनोज रवि से. मनोज रवि एक वेजिटेबल वेंडर हैं, और किस तरह से वो हमारे पास, हमारे एरिया में फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, इस बात पर हम इस मुद्दे पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे. मैं भी देख रही हूँ ये मनोज रवि का पहला इंस्टाग्राम लाइव है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है बात करने के लिए. मीनम निकम, yes, I will try and speak in English as well. Manoj speaks a little bit of English and a little bit of Hindi, so we'll try and keep this together. So the idea was that I wanted to profile and introduce you to some frontline warriors in my city, in my area, and Manoj is one such frontline warrior. He is a vegetable vendor, and yesterday when I was chatting with him, I found out that he's also been a supplier, wait for it, to MasterChef India for the last 11 years. 11 years he's been supplying to MasterChef India. So quickly looking to see if he's joined us here. No, I don't see him. Can anybody see Ravi Soni? Ravi Soni is his Instagram. I may have to call him क्योंकि अभी तक मनोज ने इससे पहले लाइव नहीं किया है, तो शायद उनको ज्वाइन करने में दिक्कत हो सकती है. Just checking if Ravi Soni is here. No, I can't find Ravi Soni. Just give me 1 second. I'm going to call him. I've got don't see him. Hi Nidhi, how are you doing? Hi Musarrat. Hi Captain Richa, how are you? And hi Ashwini, hi guys, thank you for taking out time to join me on this very, very, very special live. I'm trying to call Manoj right now to see where I can. Manoj, आपने लाइव ज्वाइन किया? हाँ, अभी आप अपना इंस्टाग्राम पे आ गए आप? ओके, अब मेरा जो डीपी है उसे अगर आप टैप करेंगे वो, तो आप लाइव ज्वाइन कर लेंगे ऑटोमेटिकली. आप रिक्वेस्ट भेजनी है आपने वो 2 स्माइलीज को क्लिक करके. Okay, send Manoj to our area. Well, Suhan, that is a request you'll have to make to Manoj. Manoj, who are join? Yes. Bye, Manoj. See you on the live. I'm so excited. In fact, I'm also very nervous because here is somebody who is a role model. Good morning, Manoj. Good afternoon. How are you? Hi Manoj, good afternoon. Hello ma'am, good morning ma'am. Sorry, good afternoon. Good morning and good afternoon हो गया आपको. बात लास्ट टाइम बात करने हाँ से. जी मैम. मनोज, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने थोड़ा आगे आएंगे तो पीछे की आवाज नहीं आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मनोज, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला सुबह के दोपहर के वक्त जब आप अपने डिलीवरी राउंड में हैं. और जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं मनोज रवि के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर हूँ. मनोज रवि मुंबई की एक वेजिटेबल वेंडर है, और मैं पिछले 15 साल से इनको जानती हूँ. और मेरे हिसाब से सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस लड़ाई में ही इज अ फ्रंटलाइन वॉरियर, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मनोज how he's doing what he's doing. So first,
we will talk about this because the need to know the story of frontline warriors is really really important, and I want everybody to know Manoj's story because there are so many warriors like Manoj. We will take about 15 minutes. जैसा कि आप देख रहे हैं मनोज बहुत बहुत बिजी है और मैं इनका एक्स्ट्रा वक्त नहीं लेना चाहती। और मनोज पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है आपके कस्टमर्स की, तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा परे हट जाए प्लीज, क्योंकि लोग आपको सुन नहीं पाएंगे। ओके मैम, थोड़ा और आगे आ जाइए, मतलब 5-10-15 कदम इधर आ जाइए, दीवार की इस तरफ आएंगे और इधर आ जाइए। और हाँ जी जी। और सब बोल रहे थोड़ा सा आगे आ जाइए, अभी भी पीछे बोल रहे हैं आवाज बहुत ज्यादा है मनोज। ओके ओके, तो हम रिस्पॉन्स इस सेशन से ये चाहते हैं कि रवि से हम रूबरू हो, वी गेट टू नो रवि, वी अंडरस्टैंड व्हाट रवि's प्लान इज, व्हाट रवि's डिस्कशन इज। रवि आप अपने हाथ में फोन पकड़ सकते हैं ऐसे, वो भी इजी रहेगा ताकि फिर डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें। हाँ ऐसे बेस्ट रहेगा। हाँ जी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आज की इस चैट का वो ये है कि हम आपसे रूबरू हो, वी वुड लाइक टू गेट टू नो यू। तो रवि बताइए, आप मुंबई से शुरू से हैं कि आपने मुंबई शिफ्ट किया, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई में जन्म लिया हूँ, मुंबई में हूँ, मुंबई से हूँ मैं। मैं जन्मभूमि यही है, मैं मुंबई में बॉर्न हूँ, पढ़ाई यहीं पे किया हूँ, सब कुछ यहीं पे है, मुंबई से हूँ। और आप रहते कहाँ पे हो मुंबई में? मैं 4 बंगला माड़ा में रहता हूँ। मैं 4 बंगला माड़ा में रहते हैं। और हालांकि मैं आपको इतने साल से जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी मालूम पड़ा कि आप मास्टर शेफ की वेंडर हैं शुरू से। यस मैम। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं मास्टर शेफ में 2010 में मुझे बुलाया गया था, उन्होंने पूछा था कि आप हमें सब्जी दोगे, तो क्वालिटी चाहिए, तो उनको मैंने क्वालिटी फर्स्ट शो में जो क्वालिटी दिया, तब तो उन्होंने मुझे फिक्स किया, क्योंकि मेरे क्वालिटी के ऊपर ही उन्होंने डिपेंड किया था कि शो है, इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा टैग है कि आप इसको संभाल पाओगे, ले लोगे। तो उन्होंने बोला कि आप एक दिन फर्स्ट शो का माल ला के दो। जो मैंने फर्स्ट जो उनको माल दिया था, अपनी बेस्ट क्वालिटी जो आपको जैसा देता हूँ वैसे उन्होंने लिया। जैसे उन्होंने फर्स्ट शो में लिया था, तभी से मुझे उन्होंने ज्वाइन करके कहा। सीजन 7 हो गए, सीजन छोटे बच्चों के साथ से लेके अभी तक का सब सीजन मैं ही किया हूँ, उनके साथ ही कर रहा हूँ मैं। Amazing Manoj. So for those of you who've just joined us, I'm in conversation with Manoj Ravi. Manoj Ravi is a frontline warrior. He is a vegetable vendor and he's making sure fresh vegetables are reaching us. Manoj ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जाकर बरसोवा में, अंधेरी वेस्ट में, सोसाइटीज में अपना टेम्पो लगाते हैं और फ्रेश प्रोड्यूस हम तक पहुंचाते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि नॉर्मली जब हम वेजिटेबल्स आप हमें सप्लाई करते हैं तो उसका रूट क्या होता है? आप प्रोक्योर कहाँ से करते हो वेजिटेबल्स? नॉर्मल टाइम, अभी तो खैर कोविड का टाइम है, नॉर्मल टाइम में वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, कितने बजे आप प्रोक्योर करते हो और कब हम तक पहुँचते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम सुबह हमारा टाइम है, सुबह 4 बजे उठ के जल्दी जाना, जो बेस्ट क्वालिटी होती है मार्केट में, और जो सुबह के 1 घंटे होते हैं उसी में मिलता है। 4 बजे? जैसे फार्म से कितने बजे? 4 बजे, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे मैम। ओके। सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो टाइम होती है हमारी, वही टाइम में हमें जो बेस्ट क्वालिटी मिलता है उसे हम लेते हैं। जो हमारा जो वेंडर है, जो हमारे फार्म से, जो हमारा पालघर से माल आता है, पूना से माल आता है, त्रिकाया से माल आता है। मेरे पास 6 कंपनी है जो मुझे माल देती हैं, वो अपना माल लाते हैं, उन्होंने पैकअप, हम रात को उन्हें ऑर्डर कर देते हैं, वो पैक करके हमें माल देते हैं। सुबह 5:30 से 6 के बीच में हमें माल वहाँ से जाके लेना होता है, वो लेके हम अपने शॉप पे आते हैं। आप उनसे माल लेने जाते हैं कि वो माल आपके पास लेकर आते हैं? नहीं, मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके खोल के चेक करना होता है कि क्वालिटी बेस्ट है कि नहीं है। हो सकता है कभी उसमें कुछ गलत आ गया तो मुझे भी उसको कवर करना होता है कि जितना जल्दी मैं जाऊंगा, खोल के चेक करूंगा, उसको उतना जल्दी लेके अपने पास शॉप पे लेके आ जाऊंगा। तो आपकी शॉप बहुत साल से, मतलब मैं हिसाब लगा रही थी, ऑलमोस्ट 15 साल से तो मैं आपको देख रही हूँ। हाँ जी, 15 साल से आपको दे रहा हूँ मैं। 15 जी। हाँ जी मैम। तो आपने 7 बंगलोज में अपना स्टॉल लगाया हुआ है बहुत देर से, और अब आपने किस तरीके से कोविड में इसे अडेप्ट किया है और आप टेम्पो को लेकर जगह जगह जा रहे हैं और वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं, क्वालिटी वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने इस कोविड के लॉकडाउन के दौरान इतनी बड़ी चुनौती, जो इतना बड़ा चैलेंज हम सबके सामने खड़ा हुआ है, उसे आपने कैसे देखा और कैसे उसे अडेप्ट किया? क्योंकि टेम्पो पहले आपके पास नहीं था मैम। हम तो दुकान पे 35 साल पुराना अपना शॉप है, जो मेरे डैडी ने चालू किया था, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ।
तो चला रहा हूँ। लेकिन ये कोविड के प्रॉब्लम में मैं स्टार्टिंग के 2 दिन बंद किया, तो कस्टमर ने मुझे पूछा, भाई तुम बंद कर रहे हो तो हमारा काम क्या करें? तो मैंने उनके लिए, कस्टमर के लिए अच्छा। सोचा कुछ तो करना चाहिए जो मेरे कस्टमर को, बेचारे को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने एक जी। टेम्पो हायर किया, टेम्पो वाले से बात किया, उनसे डायरेक्ट माल लिया, और फार्मर से बात किया, जो फार्मर मुझे डायरेक्ट मुझे माल दे सकता है। क्योंकि मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो जितने फार्मर्स है मेरे पास, उनको फार्मर्स को मैंने टाइप किया, उनसे माल लेना चालू किया। अपना टेम्पो लेके रात को 1 और 2 के बीच में उठता हूँ, अपना टेम्पो लेके जाता हूँ, रातों रात जाके शाम को सुबह 6-7 बजे तक माल लेके आ जाता हूँ डायरेक्ट फार्म से, ताकि मुझे माल सेफ अच्छी मिले और मैं अपने कस्टमर को भी सेफ्टी में अच्छा माल दे सकूँ। तो आप डायरेक्टली फार्म से लेकर आते हैं अब आज की तारीख में हाँ सामान जी। पालघर हाँ, से? डायरेक्ट हमारा पालघर से माल आ रहा है, करजत से माल आ रहा है, और जो मुझे नहीं मिलता है फिर उसके लिए मुझे काफ़ी तकलीफ़ों करके, मास्क पहन के, ग्लोव्स पहन के, अपने आप को लॉक करके मार्केट से जाके, कुछ आइटम जो मेरे फार्मर के पास नहीं है, फिर वो जाके मुझे मार्केट से लेना पड़ता है। तो उसके लिए फिर बाद में मैं जाके मार्केट में अपने आप को पूरा पैक करके जाके लेके आके, फिर आके अपने कपड़े चेंज करके नहा के फिर अपने शॉप पे आता हूँ, टेम्पो के साथ जो आपकी बिल्डिंग में आता हूँ मैं। ओके। अभी जो इतनी बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, और जगह जगह हम ये भी देख रहे थे कि रोड ब्लॉक्स लगे हैं। तो हाँ जी। आप पिछले 4 हफ्तों से वर्सोवा एरिया में ऑपरेट कर रहे हो। क्या आपको हाँ जी मैम। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? क्या आपको रोड ब्लॉक से सामना करना पड़ा? और जब आपको रोड ब्लॉक्स मिलते हैं तो किस तरीके से आप उनसे बात करते हैं और कैसे आप उन रोड ब्लॉक से आगे आते हैं? मैम क्या है कि भाजियों के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा था, लेकिन बीच में भाजी वालों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, तो इसलिए हमें जो प्रॉब्लम आया था। लेकिन हमने बीएमसी से परमिट लिया हुआ है, हमारे फार्म से माल आ रहा है, तो बीएमसी वालों ने उन्होंने ये बताया था, ठीक है आप टेम्पो लेके जाके आप माल सेल कर सकते हो, माल आप सेल करो फार्म से लेके डायरेक्ट, और एक टाइमिंग उन्होंने दिया था कि इस टाइम पे सेल करो। लेकिन मुझे बिल्डिंग में बोला गया कि बिल्डिंग में आप ये टाइम पे आ जाओ, तो बिल्डिंग के अंदर रहता हूँ मैं, बाहर नहीं। तो इसके लिए पुलिस और बीएमसी से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया अभी तक। और जो रोड ब्लॉक है उसके लिए तो पेपर वर्क है मैंने किए हुए हैं, ताकि उनको मालूम रहे कि मैं फार्म से डायरेक्ट माल लेके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो आया नहीं है मैम। मनोज, अगर आपको गर्मी लग रही है आप छाया में सामने और आ सकते हो। आप धूप में खड़े हैं इस वक्त, और मैं तो आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल जगह में बैठी हूँ, कोई नहीं एसी मैम, के कोई पास नहीं, बैठी हूँ, धूप में तो खड़े कॉफी नहीं पी रही हूँ। की। प्लीज आप कंफर्टेबल रहिए। मैं एक बार फिर से नहीं नहीं, आपका कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने एक तो हमें पिछले 4 हफ्ते से वेजिटेबल सप्लाई एब्सोल्युटली नॉर्मल रखी है हमारे लिए। हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कितनी मुश्किल मेरा से तो एक एक काम है बजे आप लोग रात की को दो सेवा दो बजे करना। उठकर आप जाते हैं। और सेकेंडली, आपने अपनी सेल्स के वक्त में मेरा ये थोड़ा सा मेरी एक इस लाइव के लिए अपना वक्त निकाला। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मनोज। थैंक यू मैम, मनोज, थैंक यू मैम। मैं अपने घर में बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग अपने घरों में बैठे हैं, और आप अपने फैमिली को छोड़कर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो और बाहर हो सप्लाईज करने के लिए। आपको डर नहीं लगता वायरस से? मैम डर तो बहुत लगता है, क्योंकि मेरे घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझसे ही होगा, क्योंकि मैं ही घर से बाहर निकल रहा हूँ। बाकी मैं अपने फैमिली को घर पे रखा हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर निकलने के बाद अपना ग्लोव मास्क पहन के निकलता हूँ, और ताकि मैं बिल्डिंग में उस जगह जा रहा हूँ जहाँ कस्टमर अच्छे मिले, सेफ्टी मिले, सिक्योर मिले, ताकि मैं भी सेफ रहूँ और आप भी सेफ रहे और मेरी फैमिली भी सेफ रहे। तो इसलिए मुझे तीनों को लेके चेन के हिसाब से चलना है, ताकि हम सब सेफ रहे। तो इसके लिए उस बिल्डिंग में जा रहा हूँ जिस बिल्डिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्डिंग में बहुत अच्छे से काफी लोग डिस्टेंस बना के आ रहे हैं, एक बाय एक करके आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का उन्होंने भी ध्यान रखा हुआ है। मुझे मेरे सब्जी को रोज टच नहीं करते हैं, मुझे कहते हैं आप मेरे बकेट में डालो, ट्रे में डालो, जो आपने भी देखा ही है, आपके बिल्डिंग में भी वही चलता है। जी। वो सब्जी को टच सीधा लेके जाते हैं, अपना सब्जी धो के फिर अपने घर पे रखते हैं, ना मुझे टच करते हैं। वो पैसे भी देते हैं तो सीधा उन्होंने बैग में मुझे डालना है, मुझसे चेंज भी नहीं लेते हैं। वो भी सेफ है और मैं भी सेफ हूँ, तो हम लोग एक सेफ्टी चेन लेके चले, ताकि मैं अपने कस्टमर को भी सेफ रखूँ और कस्टमर भी मुझे सेफ रखे। तो अभी तक तो फिलहाल ठीक है। मनोज, मैं इमोशनल हो रही हूँ आपसे बात करके, क्योंकि मुझे आपको अप्रिशिएट करते वक्त ये एहसास हो रहा है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि आप जैसे लोग हैं यहाँ पर हम लोगों को हेल्प करने के लिए। क्योंकि हम लोग तो इसे एक तरीके से ग्रांटेडली लेते हैं कि कचरा हमारा उठाया जा रहा है और सब्जियां पहुंच रही है। और इस परिस्थिति में आप अपने आप को एक तरीके से एक्सपोज कर अपने आप को जोखिम में डालकर हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और बराबर। मैं इस बात के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इनफैक्ट जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कॉन्वर्सेशन में हूँ मनोज रवि के साथ। मनोज रवि एक वेजिटेबल वेंडर है और इस लड़ाई में जो कोविड की लड़ाई है उसमें ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर है। और मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ उनको देखकर और उनकी कहानी सुनकर कि उनके घर में वो एक तो अर्निंग मेंबर है, एक तो सारी रिस्क जो आ रही है कोविड के जरिए उनकी वजह से आ रही है, और फिर भी ये कस्टमर्स के लिए अपने फैमिली के लिए इस इसेंशियल सर्विस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत लोग आपको यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं मनोज। सब बोल रहे हैं कि आप इस लड़ाई के वॉरियर हैं, इस लड़ाई के सेनानी हैं, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जाने से पहले 2-3 सवाल और। भारत के लोग जो है हम सब जुगाड़ पे निर्भर रहते हैं। तो I'm turning off comments for 2 minutes because I want you all to see Manoj's face. ओके, मैंने कुछ देर के लिए कमेंट्स बंद कर दिए मनोज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों से जो लोग यहाँ पर हैं वो रूबरू हो सके। ये जो आपने इनोवेशन किया, एक टेम्पो हायर किया, अभी टेम्पो लेकर आप सर्च करके जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये भारत की एक तरीके से हमारी स्पेशलिटी है कि जब मुश्किल सामने आती है, जब कठिनाई सामने आती है, हम जुगाड़ निकालते हैं? क्या आपको लगता है भारत में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वालिटी है हम सब भारतीयों में? है ना मैम, क्यों नहीं। अब भारतवर्ष में, भारत एक ऐसा देश है मैम कि जो हमेशा इन सब चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हर किसी का भला करते हैं, हर किसी को लेके चलते हैं। कोई ना कोई तो उठ ही जाता है। जिस बीच में मैं आप लोग के लिए उठा हूँ, ऐसे कोई ना कोई तो मार्केट में उठा हुआ है। किसी कोई दूध के लिए, कोई ब्रेड के लिए। आज तो कितने लोग हमसे सब्जी लेके, खाना बना के, कितना लोग सब हर बिल्डिंग में मैं दे रहा हूँ जहाँ सब्जी, हर बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग में भी देखें आप कि कितने लोग सब्जी मुझसे लेके बना के खाना भी दे रहे हैं। मैं तो खाली सब्जी दे रहा हूँ, लोग तो खाना बना के भी सबको, गरीबों को बांट रहे हैं। मतलब भारत हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि भारत कभी पीछे हो। इसीलिए है कि भारत अभी तक जो भी प्रॉब्लम आई है उसको झेल रहा है, और मेरे ख्याल से ये भी प्रॉब्लम जो हो रहा है इसे भी जल्दी भारत झेल के इससे मुक्त होगा। कोरोना को एक ना एक दिन खोना ही पड़ेगा भारत से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2-3 सवाल हैं आपके लिए जो लोग पूछ रहे हैं। मैंने फिलहाल कमेंट्स बंद किए थे तो क्योंकि आपके फेस पे कमेंट्स आ रहे थे। 2-3 सवाल हैं। आप कौन से एरिया में ऑपरेट करते हैं? वर्सोवा से बाहर भी जा रहे हैं कि सिर्फ वर्सोवा एरिया में ही हैं आप? वर्सोवा में 30-35 बिल्डिंग है मैम। मुझे बाहर से भी बुलाया जा रहा है क्योंकि जो मेरे कस्टमर है वो अपने रिलेटिव्स को बोल रहे हैं, उन्होंने बुला रहे। तो हम चाहेंगे कि हम एक और टेम्पो या कुछ करें जुगाड़, ताकि वहां तक भी हम पहुंचे, ताकि उन्हें जो दिक्कत हो रही है उनको उसका सामना ना करना पड़े। हम वहां तक भी सब्जी लेके पहुंचे ताकि वो घर पे सेफ रहे। हम उन्हें घर पे सब्जी घर पे प्रोवाइड करें, अपने पास उनसे ऑर्डर लें। मेरे पास कुछ मेंबर्स हैं जो बाइक पे, रिक्शे में डिलीवरी करेंगे, उनको बुलाऊंगा ताकि हर घर पे सब्जी दे सकूं, ताकि जो भी पब्लिक मुझे चाहे कि मुझे सेफ्टी रहे, मुझे कुछ भी काम करना चाहे मैं उनके लिए करूंगा मैम। जो भी रहेगा, अंधेरी के बाद भी वर्सोवा हो, उसके बाद जुहू एरिया हो, लोकल वाला एरिया हो, वहां से भी मुझे बुलाया जा रहा है। मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा ताकि वहां तक भी पहुंच जाऊं और उनको सेफ रखूं। मैं बाहर निकल के लड़ रहा हूँ ताकि मेरे जो कस्टमर वो बेचारे सेफ रहे, और आप लोग के आशीर्वाद से, दुआओं से मैं भी सेफ रहूंगा। जब भी मैं वीकली शॉपिंग करती हूँ मनोज आपसे, तो मैं सामान निकाल के रखती हूँ, धोती हूँ और उसका मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपलोड करती हूँ, और सब मुझे पूछते हैं कि इतनी फ्रेश क्वालिटी प्रोड्यूस कहाँ से आ रही है। तो इसका जवाब आपके सामने लाइव फॉर्म में खड़ा है, जो लोग देख रहे हैं। जो अभी हमें ज्वाइन किया, मैं बताना चाहती हूँ, मैं मनोज रवि के साथ कॉन्वर्सेशन में हूँ। मनोज रवि एक वेजिटेबल वेंडर है जो एक टेम्पो हायर करके कोविड के बाद सोसाइटीज में जा रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि कस्टमर्स को फ्रेश वेजिटेबल्स, क्वालिटी फ्रेश वेजिटेबल्स की शॉर्टेज ना पड़े। और ये मेरी आंखों में आंसू मनोज ने दिला दिए हैं, और इसके लिए मैं मनोज को ब्लेम करूंगी। क्विकली मनोज, मैं थोड़े क्वेश्चन देना चाहती हूँ। मैं कमेंट्स वापस चालू कर रही हूँ ताकि लोग आपकी बात सुन सके। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस फॉर मनोज, प्लीज कीप देम कमिंग। मनोज भाई, आप और आप जैसे सभी सेवकर्मियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोश बोल रहे हैं, थैंक यू जोश भाई। पाली गांगुली जी बोल रही हैं मनोज रॉक स्टार, और थैंक यू मैम। और सब बोल रहे हैं रिस्पेक्ट टू एसेंशियल वर्कर्स लाइक यू। और एक डॉक्टर है प्रेरणा गैंगटॉक से, वो आपको बहुत बहुत सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट और
नमस्कार भेज रही है थैंक यू मुसर्रत मैम, दिल्ली से थैंक यू बोल रही थैंक है यू थैंक यू। that incredible that you go and take a bath and change so there's no contamination. Yes, he does that. He does it twice a day. Once when he buys supplies, then goes home, changes Musarrat, then he comes back and then does that. I think we've done it. मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया मनोज. I've taken a lot of your time. I want you to quickly give me a message. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. कॉल दीपक बोल रहे हैं. So proud of you मनोज जी. I'm so proud of you रवि. Hats off मनोज जी. और किसी ने ये भी कहा है कि मनोज का वेट लॉस हो गया है. आपके एक दोस्त ने कहा है कि मनोज का वेट लॉस हो गया है. उसके बारे में मेरी अलग राय है, क्योंकि मैं जब भी आपको देखती हूँ मैं ये बोलती हूँ मनोज वेट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं आपको जानती हूँ यस मैम, वो एक लड़ाई है जो अब कोविड के बाद आपको लड़नी है. पक्का मैम. सब आपको बहुत थैंक यू बोल रहे हैं. मैं आपको डीएम पे ये चैट भेजूंगी मनोज, ताकि आप अपने फ्री टाइम में दोबारा इसे देखें. ये लाइव 24 घंटे के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे रहेगा. और आप जब घर पहुंच जाएंगे या फिर ब्रेक लेंगे लंच की, तो आप इसे पूरे लाइव को दोबारा देख सकते हैं. और मुझे आशा है कि आपको इस लाइव पे आकर एक नया अनुभव मिला होगा. और मैं आपका दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. नहीं, मेरा काम है आप लोग की सेवा करना. मैं आपकी सेवा करते रहूंगा. थैंक यू मैम. थैंक यू मनोज. थैंक यू ऑल. थैंक यू मनोज. थैंक यू मैम. बाय मनोज. बाय. थैंक यू सो मच. बाय मैम. बाय मनोज. So guys, that was Manoj, Ravi. It's a stark reminder of how comfortable we are in our homes and sitting in an environment like this. I have the air conditioning on. I'm sipping a cup of coffee, and Manoj is outside battling the virus, battling possible contamination from God knows where, and also out in the heat and going about doing his job, A, because he needs to earn a livelihood, and B, because he feels he has a commitment towards all his customers. And like me, there are lots of customers. Rupali Ganguly ji just messaged as well. She's been a customer of Manoj's as well. And I think it's warriors like Manoj who are making sure that the impact of COVID on us has remained minimal. While India has seen a record handling of COVID, we haven't seen the kind of expansion that Italy saw, Spain saw, the US and the UK have seen. I think it's also because of the proactiveness of our essential workers, essential warriors like Manoj, who are doing an incredible job. And I just feel absolutely small and insignificant compared to someone like Manoj who's out there. Over the next 2-3 days, I'm going to be talking to some more frontline warriors. I'm trying to reach out to somebody from the police and from the BMC's garbage collection unit, as well as somebody in the government hospital, to give us a frontline perspective of what exactly is going on in these places. Thank you once again for taking out time to join me. I know it's a departure from all the glamorous, interesting, famous people that we've been speaking to on Cool Tech, but I think these conversations are equally important, because we are going to change as individuals as we go forward. We are going to change in the way we operate, and I think a starting point of change is gratitude to these incredible essential service providers who are the new warriors of this time. So thank you guys for joining in. I really appreciate the time you all have taken out. And I know I have a lot of requests to go live with, and I will do a live one day where I'll take lots of my friends from Instagram live, but today is not that day. Hi guys, I'd like to take a quick minute to thank you all. Insta Travels, Foodie, official. Okay, I'm going to quickly say a hi to everybody who's here. Thanks again, Musarrat, Yash, Mukund Gupta, Kinar, Neha, Sandeep, Ashma. Worst mama. Why are you the worst mama? Foodie may welcome. Thank you guys for taking our time. मुझे ये भी बहुत अक्सर feedback आ रहा था. शिल्पिका सक्सेना, thank you. Parminder Kaur, thank you so much. Abir Lal Das, Bhavik Bhosle, Kushdeep Kaur, Sugathan Gopalan, Bhanupriya Ghai, and many others, because I'll have to log off now. I also got a lot of feedback that I wasn't doing Instagram lives in Hindi. My goal is not to speak in a particular language. मेरी कभी भी ये इच्छा या फिर मेरा कभी भी ये लक्ष्य नहीं होता कि मैं हिंदी में बात करूं या मैं अंग्रेजी में बात करूं.
कोशिश ये रहती है कि जिस 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 व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं आप उनके साथ उस भाषा में बात कर रहे हैं जिसमें वो सबसे कंफर्टेबल है। हालांकि मनोज की इंग्लिश काफी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत फीडबैक मिला था कि हम हिंदी में बात नहीं करते इस लाइव पर, तो मैंने ये लाइव ज्यादातर हिंदी में रखा है। और मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज को देखते रहिएगा। नेक्स्ट लाइव की डिटेल्स के बारे में आई विल बी बैक टुमारो एट 12 talking to a medical professional who is at the front line of fighting this battle against COVID-19. Thank you all for joining in. Keep track of stories so you know what's up next. Thank you again and have a wonderful day. Thank you guys. Goodbye. We were chatting with Manoj. For those of you who missed this conversation with this incredibly brave entrepreneur, innovator, Manoj Ravi, please go back and do watch it. Thank you guys. God bless and stay safe.